Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series. We will be revising the complete chapter concepts through MCQs and topic for this lecture is haloalkanes and haloarenes. Let's start with the questions. Before starting, make sure you subscribe to this channel so that you can get more and more videos on MCQs. It will help in revising the topic thoroughly. Alright. So beta, in this lecture, we are going to take up NCERT exemplar questions from the chapter haloalkanes and haloarenes. Already 2 lectures have been taken up in this chapter and you have learnt the preparation methods, physical properties, chemical reactions for alkyl halides as well as aryl halides. What type of reactions they undergo and the mechanisms also, particularly SN1 and SN2 mechanisms. In SN1 you have seen it is a reaction which takes place in 2 steps and carbocation is the intermediate for it. Whereas in SN2 it is a single step reaction and 5-member transition state is formed in it and strong nucleophile is required for SN2, whereas for SN1 reaction a weak nucleophile and nucleophile should be in low concentration and polar solvent is required for SN1. So all these points you have to keep in mind, then only you can do these NCERT exemplar questions from the chapter haloalkanes, right? So in this video questions are on haloalkanes and in the next video we will be taking up NCERT questions on aryl halides. Got it? So let's start with the questions. Question number 1 on the screen. The order of the following alcohols with halogens. You are given A, B, C, 3 alcohols. You have to react them with halogen and give the order of reactivity. So first one is 1 degree alcohol. It is propyl alcohol. 3 carbons means propyl alcohol. Second one is a 2 degree alcohol. Can you see the carbon which is having OH, it is attached to 2 other carbons. The carbon which is carrying OH group is attached to 2 other carbons, that is why it is 2 degree. जो पहले वाला था बेटा वो 1 डिग्री था और थर्ड वाला जो है वो 3 डिग्री है. The carbon which is carrying OH is attached to 3 other carbons. तो अब ये 3 molecules, 3 alcohols आपको दिए हैं और आपने क्या बताना है, order of reactivity of these alcohol towards halogen. I mean to say कि बेटा ये reaction हमने करना है, ROH will be reacted with something to get converted to RCl. तो ये bond break होगा ना, R and OH, carbon oxygen bond has to be cleaved. Got it? तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, कैन आई से कार्बोकेटायन विल बी फॉर्म्ड, यू विल बी हैविंग R प्लस एंड OH नेगेटिव. तो कार्बोकेटायन कौन सा स्टेबल होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन अगर हम देखते हैं तो 3 डिग्री बेटा टॉप पे होता है. तो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन 3 डिग्री इज मोर स्टेबल. 3 डिग्री स्टेबल है इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन जल्दी से बन जाएगा. 1 डिग्री स्टेबल नहीं है तो 1 डिग्री बनेगा भी नहीं. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कार्बोकेटायन को बनने के बाद बीकर में सर्वाइव करना है, चाहे फ्यू सेकेंड्स के लिए ही करना हो. उसके बाद फिर Cl नेगेटिव उसके साथ अटैच हो जाएगा और आपको अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा. तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है. अब हमारे जो मॉलिक्यूल्स थे उनमें से हम सबसे पहले C मॉलिक्यूल लिख रहे हैं. C मॉलिक्यूल में देखो टोटल बेटा 5 कार्बन्स हैं. ये मैंने 5 कार्बन्स का अल्कोहल लिख दिया जो C ऑप्शन में गिवन था. यू वर हैविंग दिस स्ट्रक्चर इन द मॉलिक्यूल C. गॉट इट? तो इसका जब कार्बोकेटायन बनेगा वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन आएगा. 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट. हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3 CH2 देन C कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड देन मिथाइल ग्रुप्स. गॉट इट? OH नेगेटिव विल बी सेपरेटेड. सो 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होते हैं इसलिए 3 डिग्री जल्दी बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है. तो सबसे जल्दी C रिएक्ट करेगा
फिर बेटा बी रिएक्ट करेगा, उसके बाद ए रिएक्ट करेगा, क्योंकि जो ए है वो तो 1 डिग्री अल्कोहल है, ए इज 1 डिग्री। 1 डिग्री का रिएक्शन स्लो होता है, 1 डिग्री में कार्बोकेटाइन नहीं बनता इजीली, इसलिए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फिर हमारे पास क्या आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, order of reactivity of alcohols is 3 degree, more reactive than 2 degree, which is more reactive than 1 degree. As a result आपके पास आंसर बनेगा C compound, the compound is alcohol given in C option। ये जल्दी रिएक्ट करेगा, उसके बाद B, उसके बाद A, क्योंकि यहाँ C में 3 डिग्री दिया है, 2 डिग्री दिया है B ऑप्शन में और 1 डिग्री दिया है A ऑप्शन में। गॉट इट? तो आंसर क्या बना, मोर रिएक्टिव इज 3 डिग्री, मीन्स बी ऑप्शन। सी सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, उसके बाद बी करेगा, उसके बाद ए करेगा। इज इट ओके? सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स आपको कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के थ्रू देखना है। लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। Which of the following alcohols will yield the corresponding alkyl chloride on reaction with concentrated HCl at room temperature? आपको अल्कोहल्स दिए, फॉलोइंग अल्कोहल्स मीन्स 4 अल्कोहल दे दिए ऑप्शंस में, विच विल गिव अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे हम चाहते हैं कि रिएक्शन हो जाए, हीट ना करना पड़े। तो क्या ऑप्शंस में देखो, एक ए ऑप्शन तो है 1 डिग्री अल्कोहल। कैन आई मेंशन हेयर इन ए ऑप्शन इट इज 1 डिग्री अल्कोहल? Because OH is attached to OH is attached to the carbon which is further attached to 1 carbon only. Let's come to B option. OH is attached to the carbon which is further attached to 2 carbon. So ये 2 डिग्री अल्कोहल है। C वाला तो 1 डिग्री अल्कोहल है, इस कार्बन के आगे एक ही कार्बन अटैच्ड है। Let's come to D option, ये बेटा 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री बहुत जल्दी से रिएक्शन करता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन में भी। अगर आपके पास ROH प्लस HCl हो, यू विल गेट RCl प्लस वाटर। ये कब होता है? जब 3 डिग्री अल्कोहल हो। 3 डिग्री वाला रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन प्रोडक्ट दे देगा, आपको हीट नहीं करना पड़ेगा। रीजन कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी है, 3 डिग्री में इमीडिएटली रिएक्शन होता है। एज अ रिजल्ट जो डी ऑप्शन है, अगर उसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो बेटा ये स्ट्रक्चर है आपके पास, ये मॉलिक्यूल, इसका कार्बोकेटाइन बना दिया मैंने डी ऑप्शन में से, ठीक है। OH हटा के कार्बोकेटाइन बना दिया, देन इट विल कंबाइन विद, या फिर आप ऐसे और डिटेल में मैकेनिज्म शो करना है तो कार्बोकेटाइन से पहले अल्कोहल बना के दिखा सकते हैं। ये OH HCl का जो H प्लस है वो आके अटैक करता है, वो बेटा लोन पेयर के साथ अटैच हो जाएगा, ये लोन पेयर H प्लस को जोड़ लेगा अपने साथ। एज अ रिजल्ट पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है, आप ऐसे शो भी कर सकते हो डिटेल में अगर शो करना है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है फिर ये वाटर लूज करेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। अब हम माइनस वाटर से कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। ये आपका कार्बोकेटाइन, और 1 डिग्री में यही प्रॉब्लम है कि ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री का स्टेबल नहीं होता, इसलिए 1 डिग्री का रिएक्शन इजीली नहीं होता है, ठीक है। नाउ क्लोराइड कैन कम एंड गेट अटैच्ड हेयर। Cl नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है और आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाता है इमीडिएटली रूम टेम्परेचर के ऊपर। ये प्रोडक्ट तभी के तभी आ जाएगा जब आप अपने 2 कंपोनेंट्स मिक्स कर दोगे। कौन से 2 कंपोनेंट? HCl और अल्कोहल। तो 3 डिग्री आंसर है। एज अ रिजल्ट हमारा आंसर बना डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में 3 डिग्री अल्कोहल दिया था। और देखो अगर 1 डिग्री अल्कोहल दिया होता है, लेट्स से कि हमें ROH दिया है एंड इट इज 1 डिग्री, समझ लो कि ये इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल को जब आप HCl से रिएक्ट कराओगे तो बेटा एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड करना पड़ता है, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड करते ही आपके पास ये प्रोडक्ट आ जाता है प्लस वाटर। ये ZnCl2 क्या काम कर रहा है? अगर नहीं डाला एनहाइड्रस ZnCl2 प्रोडक्ट नहीं आएगा, अल्कोहल कन्वर्ट नहीं होगा अल्काइल हैलाइड में। एनहाइड्रस ZnCl2 विल
act as a Lewis acid. It will act as a Lewis acid and it will weaken the carbon oxygen bond. It will weaken the carbon oxygen bond of alcohol. Then you will get the product. Is it clear? तो ये जो है ये बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प कराता है, क्योंकि 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन तो स्टेबल है नहीं, तो इसलिए लुईस एसिड एक्स्ट्रा बाहर से डालना पड़ता है। 3 डिग्री में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ आपको ZnCl2 नहीं डालना, कुछ आपको हीट नहीं करना, इमीडिएटली आपका प्रोडक्ट आता है। द मोमेंट यू मिक्स देम यू विल बी गेटिंग प्रोडक्ट। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन? हैलोजन एक्सचेंज किसके अंदर हो रहा है? यू आर गिवन RX प्लस NaI एंड RI इज द प्रोडक्ट। ये जो हैलोजन था X ये बाहर आ गया और आयोडीन आपके रिएक्टेंट के अंदर जाके लग गया, वो प्रोडक्ट है RI। आई मीन टू से अगर ये क्लोराइड था तो अभी आयोडाइड बन गया, या अगर ये ब्रोमाइड था तो अब ये फिर से आयोडाइड बन गया। सेकेंड वन इज द एडिशन ऑफ HX। इसमें तो H और X दोनों ऐड हो रहे हैं, सेकेंड रिएक्शन तो एडिशन है। सेकेंड रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो एल्कीन्स होती हैं व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सी रिएक्शन के अंदर तो सब्स्टिट्यूशन हो रही है। कौन सब्स्टिट्यूट हो रहा है? OH बाहर जाता है और X अंदर आता है। सी रिएक्शन को ग्रूव्स प्रोसेस भी कहते हैं। उसके बाद डी को देखते हैं। डी में टॉल्यूइन लेके हेलोजन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ Fe। डी बेटा हेलोजन को ऐड कर रहा है, एक्सचेंज तो नहीं कर रहा ना। एक्सचेंज का मतलब एक हेलोजन अंदर जाए और एक बाहर आए। जो डी है दैट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन में हेलोजन एक्सचेंज हो रहा था। इन ए ऑप्शन आप ऐसे लिखते हो RCl प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये रिएक्शन ऐसे बन जाता है RI प्लस NaCl एंड इट इज अ नेम्ड रिएक्शन। साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए। इट इज फिंकलस्टीन्स रिएक्शन। इट इज कॉल्ड एज फिंकलस्टीन्स रिएक्शन। और नेम्ड रिएक्शन एग्जाम में बहुत आते हैं, बी केयरफुल फॉर नेम्ड रिएक्शन। जो NaCl है ये तो सॉल्युबल नहीं होता एसीटोन में, NaCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, क्योंकि सॉल्वेंट हमारे रिएक्शन का एसीटोन है। एक हेलोजन को दूसरे से एक्सचेंज कर दिया, इसलिए इसका नाम है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हमारा आंसर बनता है ऑप्शन ए। और किसी भी ऑप्शन में B, C, D किसी के अंदर भी एक्सचेंज ऑफ हेलोजन नहीं हो रहा है। गॉट इट? सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विच रिएजेंट विल यू यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन? आपको ये रिएक्शन कैरी आउट करना है जिसमें कि N ब्यूटेन आपको गिवन है, N ब्यूटेन से कन्वर्ट करो। प्रोडक्ट्स के नाम क्या हैं? N प्रोपाइल क्लोराइड एंड द सेकेंड वन इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। सॉरी, N ब्यूटाइल, 4 कार्बन है तो N ब्यूटाइल क्लोराइड। अपर वन इज N ब्यूटाइल, लोअर वन इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये आपके प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स दिए हैं। कौन सा रिएजेंट है? ऑप्शंस आर गिवन, क्लोरीन सनलाइट, क्लोरीन एंड अल्ट्रावायलेट लाइट, और NaCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरीन गैस इन डार्क, और क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ आयरन इन डार्क। क्या करना है हमें? एल्केन हमें दिया है और हमें एल्काइल हैलाइड बनाना है। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन करना है, मतलब वी वांट डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन is carried out by क्लोरीन एंड सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट। ब्रोमीन एंड सनलाइट भी ले सकते हैं। क्लोरीन लेंगे तो क्लोराइड लगेगा एंड ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमाइड लगेगा। एज अ रिजल्ट आपके क्वेश्चन का आंसर बनता है बेटा ए ऑप्शन। ये रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, याद रखिए। जब आप एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाते हो, एल्केन आपका रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट था एल्काइल हैलाइड। ये बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? क्लोरीन एंड सनलाइट। बट जब ये रिएक्शन होता है
ये रिएक्शन में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये याद रखना है। इट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल के थ्रू ही ये प्रोडक्ट आता है। एल्केन्स के अंदर तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं होते, एल्केन का कोई कैटायन या एनायन नहीं बन सकता। एल्केन का रिएक्ट करने का तरीका होता है कि वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होंगे और फ्री रेडिकल बनाने के लिए सनलाइट चाहिए। और दूसरी बात, एल्केन में एडिशन रिएक्शंस कभी नहीं होते, एल्केन में सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, क्योंकि एल्केन पहले से ही सैचुरेटेड होता है, उसमें फर्दर कुछ और ऐड नहीं हो सकता। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर हमें देनी है। क्या क्या ऑप्शंस हैं? 3 कंपाउंड गिवन है। 1 इज अल्काइल हैलाइड, सेकंड इज अल्काइल हैलाइड, थर्ड इज ऑल्सो एन अल्काइल हैलाइड। फर्क क्या है तीनों में? देखो, फर्स्ट वन जो है बेटा वो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, फिर भी 1 डिग्री है, बट फर्स्ट और सेकंड दोनों 1 डिग्री है। फर्क क्या है? सेकंड वाला स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, और फर्स्ट वाला ब्रांच्ड कंपाउंड है। थर्ड वाला तो इवन मोर ब्रांच्ड एंड इट इज 3 डिग्री। 3 डिग्री तो सबसे ज्यादा ब्रांच्ड होता है। गॉट इट? तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए मेन एक बात याद रखनी है कि जो आपका स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होगा या स्ट्रेट चेन अल्कोहल होगा या स्ट्रेट चेन अल्काइल हैलाइड होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ऑलवेज। बॉइलिंग पॉइंट, 1 सेकेंड, boiling point of straight chain compounds is always more than the branch chain. Boiling point of straight chain is more than the branched compound. Okay? ब्रांचिंग से क्या प्रॉब्लम होती है, कम क्यों होता है बॉइलिंग पॉइंट? याद रखो कि अगर ब्रांचिंग हो गई, with branching molecule becomes compact. ठीक है, छोटा, लेस सरफेस एरिया फिर वो ऑक्यूपाई करता है। मॉलिक्यूल बिकम्स कॉम्पैक्ट, हेंस इट विल ऑक्यूपाई, हेंस इट ऑक्यूपाइज लेस सरफेस एरिया। उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होने से वंडरवॉल इंटरेक्शंस कम हो जाएंगी। लेस सरफेस एरिया, देयरफॉर लेस magnitude of van der Waal interactions. Less magnitude of van der Waal interactions. तो क्या क्या रखना है हमने याद कि अगर ब्रांचिंग होती है तो मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट हो जाता है, उससे उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, और फिर कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है कि वंडर वॉल इंटरेक्शंस कम हो गई। क्लियर? तो 3 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उसके बाद आएगा 2 डिग्री, उसके बाद आएगा 1 डिग्री। एज अ रिजल्ट सबसे कम है थर्ड कंपाउंड का, फिर बेटा फर्स्ट का, फिर ये देखो हमारे पास थर्ड कंपाउंड का सबसे कम, फिर बेटा फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाला भी ब्रांच था, उसमें ब्रांचिंग कम थी, थर्ड में ज्यादा थी, और सेकंड वाला तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स इज ऑलवेज मोर देन ब्रांच चेन कंपाउंड्स, चाहे कंपाउंड एल्केन हो, चाहे अल्काइल हैलाइड हो, या फिर ये कोई एल्कोहल भी हो सकता है। एक अल्कोहल स्ट्रेट चेन दे दिया, एक ब्रांच दे दिया, तो दोनों अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। पर जो अल्काइल चेन है, जो हाइड्रोकार्बन वाली चेन है, वो स्ट्रेट चेन के अंदर ज्यादा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करती है, तो ज्यादा इंटरेक्शंस होती हैं, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इज इट ओके? और ये हमारे जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके नेम्स भी क्लियर होने चाहिए। थर्ड वन का नाम है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंड वाला बेटा है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये जो सेकेंड है स्ट्रेट चेन है ना, इट इज एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एंड थर्ड इज 3 डिग्री टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर आप फर्स्ट वाले को देखोगे, उसमें भी 4 कार्बन है, दैट इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। एक कार्बन पे जब 2 मिथाइल लग जाते हैं, उसको आइसो ग्रुप कहते हैं। सो इट इज आइसोब्यूटाइल। फर्स्ट वन इज आइसोब्यूटाइल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 6.
In which of the following molecules carbon atom marked with asterisk is asymmetric? ठीक है, तो स्टार लगा रखा है सेंट्रल कार्बन पे, उसमें से एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर कौन सा है? एसिमेट्रिक का मतलब बेटा कायरल, ये याद रखो, ठीक है। एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर मतलब कायरल स्ट्रक्चर। कायरल स्ट्रक्चर वो होता है जो डिसमेट्रिक होता है। आपको 4 मॉलिक्यूल दिए, डिसमिट्री मॉलिक्यूल के अंदर कहीं से भी कोई सिमेट्री का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। डिसमिट्री इज द कंडीशन फॉर कायरलिटी, ठीक है। क्वेश्चन ने हमें क्या बोला था कि कौन सा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक का मतलब कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है। तो आप चारों स्ट्रक्चर्स को देखो। फर्स्ट वाले में देखो चारों ग्रुप अलग अलग अटैच्ड हैं, Cl लगा है, Br लगा है और हाइड्रोजन आयोडीन सब अलग अलग, ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। जब सिंगल कायरल कार्बन हो, एक ही कायरल कार्बन हो, तो मॉलिक्यूल भी फिर कायरल हो जाता है। सेकंड नंबर पे यू आर हैविंग आयोडीन, ड्यूटीरियम, क्लोरीन, bromine, again they are different, all 4 are different. Let's come to third compound. थर्ड में है हाइड्रोजन, देन OH, मिथाइल एंड इथाइल, ये चारों भी डिफरेंट है। फोर्थ में बेटा एक है मिथाइल, एक इथाइल और 2 हाइड्रोजन, चारों ग्रुप अलग अलग होंगे तभी कायरल बनेगा, तभी एसिमेट्रिक बनेगा। बट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक मिथाइल और एक इथाइल है, तो फोर्थ वाला कंपाउंड एसिमेट्रिक नहीं है। ये मेन चीज है, हमें अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। बी केयरफुल, यू हैव टू लर्न फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिसमें कि इनेंशियोमर कैसे देखते हैं और डायास्टीरियोमर कैसा देखते हैं, वो सब कैसे ढूंढते हैं आपको सीखना है। लेट्स कम टू द ऑप्शंस नाउ। आपके 4 कंपाउंड में से आंसर ये निकला था कि फर्स्ट 3 आर एसिमेट्रिक, द फोर्थ वन इज नॉट, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 मतलब बी ऑप्शन इज द आंसर। कायरलिटी मीन्स एसिमेट्रिक। कायरल कार्बन होगा तो मॉलिक्यूल भी कायरल होगा, उसको एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इनेंशियोमेरिक विद द मॉलिक्यूल ए गिवन। आपको एक मॉलिक्यूल दिया है ए और 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन इनेंशियोमर है इस ए स्ट्रक्चर का। वेरी इंपॉर्टेंट, इनेंशियोमर्स का बेटा कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। ओरिजिनल मॉलिक्यूल अगर आर है तो इनेंशियोमर एस होगा एंड वाइस वर्सा। गॉट इट? तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग CIP रूल्स। By using CIP rules, we will designate the molecule as R or S. CIP क्या है? Can, in gold and pre-log. Can, in gold and pre-log priority rules are there. वो रूल्स के बेसिस पे हम मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। R है या S है वो चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है अगर, तो वो R होता है, एंटी क्लॉकवाइज हो तो S होता है। लेट्स कम टू द मॉलिक्यूल। पहला हाईएस्ट प्रायोरिटी बेटा ब्रोमीन की है, जिसकी हाई प्रायोरिटी उसको नंबर 1। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रायोरिटी इथाइल की है, मिथाइल और इथाइल में से हाई प्रायोरिटी इथाइल की, फिर हाई प्रायोरिटी तीसरे नंबर पे मिथाइल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। बट एक बात माइंड में रखिए कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है लीस्ट प्रायोरिटी है, वो मॉलिक्यूल के अंदर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होना चाहिए। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर वाला ये पोजीशन है, ये जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया, जो ये बेटा डैश से दिखाया हुआ है, ठीक है। तो डैश, ये डॉटेड लाइंस है ना, इसको डैश कहते हैं। तो ये जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, अगर तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा, अगर डैश पे होगा तो आप डायरेक्ट आंसर दोगे। अदरवाइज अब हमारे मॉलिक्यूल में तो हाइड्रोजन नहीं है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर कौन सा पोजीशन है जो डॉट्स के साथ दिखाया है, डैश के साथ दिखाया है, तो वहां पे तो वो नहीं है, वहां तो मिथाइल है। एज अ रिजल्ट आपको फिर ऑपोजिट आंसर देना है। क्लॉकवाइज आएगा तो हम
आर नहीं एस देंगे, इसको गोल्डन रूल कहते हैं। गॉट इट? गोल्डन रूल क्या होता है कि आप अपने एटम की पोजीशन चेंज मत करो, हाइड्रोजन जहां है उसको वहीं रहने दो, बट असाइन द आंसर ऑपोजिट टू दैट। तो अब 1 से लेके 2 से 3 तक, 1 to 2 to 3 मूवमेंट देखेंगे। 1 2 एंड 3 ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्लॉकवाइज से आंसर आर आता है, पर हम आंसर एस देंगे क्योंकि हमें गोल्डन रूल अप्लाई करना है, हमारे पास तो हाइड्रोजन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर नहीं था। लेट्स कम टू द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इनेंशियोमर हम ढूंढ रहे हैं। ए ऑप्शन में फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमीन, सेकंड इज इथाइल, थर्ड इज मिथाइल, और इसमें भी गोल्डन रूल लगेगा, इसमें भी हम ऑपोजिट आंसर देंगे। मूवमेंट देखते हैं 1 to 2 to 3। जब 1 2 से 3 तक आप मूव करोगे तो आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज से आंसर एस बनता है, बट आपको तो ऑपोजिट आंसर देना है, सो इट इज आर। गॉट इट? लेट्स कम टू द सेकेंड मॉलिक्यूल, बी ऑप्शन पे आते हैं। 1 नंबर फॉर ब्रोमीन, 2 नंबर फॉर इथाइल, 3 नंबर फॉर मिथाइल। 1 to 2 to 3 हम मूवमेंट चेक करेंगे, ये ऑपोजिट जा रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। 1 to 2 to 3 एंटी क्लॉकवाइज पे आंसर एस, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। लेट्स कम टू सी। सी में 1 and 2 and 3, 1 to 2 to 3 is the clockwise movement, मतलब आर बनता है, पर आप आंसर ऑपोजिट दोगे क्योंकि हाइड्रोजन इज नॉट एट द पोजीशन विच इज डैश पोजीशन। लेट्स कम टू डी ऑप्शन। ये आपका फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी, फिर इथाइल, फिर मिथाइल। 1 to 2 to 3 ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, मतलब एस बन रहा है। तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल एस था और सारी ऑप्शन एस आ रही हैं, बट ए ऑप्शन आर आ रही है। तो इनेंशियोमर्स तो ऐसे ही देखे जाते हैं ना, जिनकी ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इनेंशियोमर्स होते हैं। इनेंशियोमर में ये प्रॉपर्टी होती है कि एक अगर लाइट को राइट हैंड पे रोटेट करेगा, दूसरा लेफ्ट पे रोटेट करेगा। अगर आर एस असाइन नहीं करना तो आप ऐसा भी देख सकते थे, इवन नंबर ऑफ चेंजेस होते हैं, अगर even number of changes are done in the molecule, then it is the same molecule, identical structure है फिर। but अगर odd number of changes कर दिए गए, odd number of exchanges और changes, तो ये इनेंशियोमर बनता है। अब आप अपना ओरिजिनल मॉलिक्यूल और ए ऑप्शन को देख लो। ओरिजिनल मॉलिक्यूल को अगर हम देखें, फिर हम ए ऑप्शन को देखें, तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन तो वहीं के वहीं हैं, पोजीशन बदल रहा है मिथाइल और इथाइल का। ठीक है, मिथाइल की जगह इथाइल आ गया, इथाइल की जगह मिथाइल आ गया, मतलब एक एक्सचेंज किया। जब एक एक्सचेंज होता है तो फिर वो इनेंशियोमर बन जाता है। आप आर एस ना कैलकुलेट करके एक्सचेंजेस के थ्रू भी देख सकते हो, उससे थोड़ा टाइम बच जाता है, बट आर एस से 100% क्लैरिटी मिल जाती है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विसिनल डाइहैलाइड? विसिनल क्या होता है बेटा? विसिनल, VIC इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल का मतलब होता है विसिनिटी। विसिनिटी क्या होता है? नेबरहुड। दिस इज विसिनिटी, मतलब नेबरहुड। तो दो नेबरिंग पोजीशन पे हैलोजन किसके अंदर लगा है, और अगर एक ही कार्बन पे दो हैलोजन लगे होते हैं उसको जैमिनल कहते हैं। जैमिनल मीन्स सेम कार्बन हैविंग टू हैलोजन्स। एक ही कार्बन पे जब दो हैलोजन लगेंगे तो उसको जैमिनल कहते हैं, अगर अलग अलग पे लगेंगे तो उसको विसिनल कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डाइक्लोरोमीथेन, सेकेंड ऑप्शन इज 1 2 डाइक्लोरोइथेन। तो सेकेंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, या चलो पहले फर्स्ट का बनाते हैं। 1 2 डाइक्लोरोमीथेन, ये ए ऑप्शन मैंने बना दिया। बी ऑप्शन में दिया है 1 2 डाइक्लोरोइथेन, तो ये आपके दो कार्बन, एक क्लोरीन 1 कार्बन पे लगानी है, एक सेकेंड कार्बन पे लगानी है। एज अ रिजल्ट ये बेटा विसिनल आ गया। ठीक है, ए ऑप्शन में तो कार्बन ही एक था, उसमें विसिनल जेमिनल नहीं होगा। सी ऑप्शन इज इथाइलिडीन क्लोराइड। इथाइलिडीन क्लोराइड ये होता है एक कार्बन पे ही जब दो क्लोरीन्स लग जाएं, दिस इज कॉल्ड एज इथाइलिडीन क्लोराइड। ये सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन है एलाइल क्लोराइड।
डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन का नाम एलाइल होता है, उस पे आप हेलोजन लगा दोगे, लास्ट वाला एलाइल क्लोराइड है। ठीक है, तो आपका आंसर बनता है बी ऑप्शन। हमें क्या देखना था, विसिनल डाइहेलाइड, विसिनल डाइहेलाइड इज गिवन इन बी ऑप्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, द पोजीशन ऑफ Br इन द कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज, इस कंपाउंड में Br का क्या पोजीशन है, ब्रोमीन का, ये लगा हुआ है ब्रोमीन। ठीक है, तो ब्रोमीन बेटा कहां लगा है ये चेक करना है। स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करके लिखते हैं पहले। ये आपको स्ट्रक्चर गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH देन C Br एंड 2 मिथाइल। दिस इज द स्ट्रक्चर गिवन टू अस। अब बेटा ये देखो कि ये एलाइल, एराइल, विनाइल, सेकेंडरी, इसको क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन लग गया। ये कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पोजीशन है ना, तो इट इज एलिलिक पोजीशन। आई कैन कॉल इट एन एलाइल ब्रोमाइड। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की टर्म्स में कहना है फिर तो ये बेटा 3 डिग्री बनेगा, H नहीं आएगा क्योंकि H लगाने से तो 5 बॉन्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 डिग्री बनेगा। जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है वो 3 और कार्बन से जुड़ा है। आपके यहाँ 3 डिग्री का मतलब टर्शरी का तो ऑप्शन ही नहीं दिया, एलिलिक पोजीशन है ये। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन का नाम एलाइल होता है, यहां लिख भी देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2, दिस इज कॉल्ड एज एलिलिक कार्बन और एलिलिक पोजीशन। ठीक है, और जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है ये विनाइलिक कार्बन है, दिस इज विनाइल क्लोराइड। अगर मैं यहां क्लोरीन लगा दूं तो ये विनाइल क्लोराइड बन जाएगा। याद रखना है विनाइल और एलाइल पोजीशन क्या होती है, तो आंसर बना ऑप्शन ए। क्लियर, ए ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर था। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 मोस्ट रेडिली। SN1 रिएक्शन करना है और तीनों के तीनों आपको दिए मॉलिक्यूल्स जो वो टर्शरी ब्यूटाइल है, टर्शरी ब्यूटाइल फ्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड आपको गिवन है। SN1 रिएक्शन में फास्टेस्ट रेट पे कौन रिएक्ट करेगा, SN1 हो या SN2 हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये होता है RI, RBr, RCl एंड देन RF। ये आपके पास ऑलवेज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहेगा, क्योंकि SN1 हो या SN2 हो, हेलोजन को तो बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, आयोडाइड इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, आयोडाइड इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। कीप इन माइंड, आयोडाइड बेटा किस एसिड से आ रहा है, HI से, और ब्रोमाइड कहां से निकल रहा है, ब्रोमाइड का कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो HBr, क्लोराइड का HCl एंड फ्लोराइड का HF। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन चारों में से HI है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज HI। एज अ रिजल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा वो उसका बेस्ट लिविंग ग्रुप का नेचर होता है। कार्बन आयोडीन इज अ वीक बॉन्ड, एज अ रिजल्ट आयोडीन जल्दी बाहर जाएगा, जल्दी बाहर जाएगा तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन जल्दी होगा। कार्बोकैटायन के बाद ही तो प्रोडक्ट आना है। SN1 का पहला स्टेप होता है हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। गॉट इट, डी ऑप्शन बेटा आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट शुड बी द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द गिवन स्ट्रक्चर। क्या नाम दिया है आपको, डाईइथाइल ब्रोमोमीथेन। ये स्ट्रक्चर बना के फिर उसका IUPAC नेम हमें लिखना है। लेट्स स्टार्ट राइटिंग द स्ट्रक्चर। पहले मीथेन मतलब एक कार्बन, उस पे लगाओ ब्रोमीन, फिर उस पे लगाओगे आप इथाइल, 2 बारी इथाइल लगाना है, डाईइथाइल बोला है ना, डाईइथाइल ब्रोमोमीथेन। लेट्स हैव इथाइल ग्रुप्स अटैच्ड। ये मैंने C2H5 कर दिया है और कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई करिए। ये स्ट्रक्चर बना। अब आपको कंपाउंड का नाम देना है बेटा। तो ये देखो, हमें इसको और एक्सपेंड करना चाहिए ताकि कार्बन्स क्लियरली दिखें। यही स्ट्रक्चर मैंने ऐसे लिख दिया, CH3 CH2, उसके बाद C के ऊपर Br, फिर H,
फिर एक इथाइल। ये आपके पास स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो अब इसका नाम देना है। लॉन्गेस्ट चेन तो हमें दिख ही रही है, ये 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 कार्बन। सेकेंड कार्बन के बाद थर्ड के ऊपर बी आर लगा हुआ है, सो 3 ब्रोमोपेंटेन हो गया, 3 ब्रोमोपेंटेन। 5 कार्बन थे स्ट्रेट चेन के अंदर, इट इज कॉल्ड एज 3 ब्रोमोपेंटेन। तो ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। आपको नॉमेनक्लेचर पे, रिएक्शन पे, किसी फिजिकल प्रॉपर्टी पे या फिर प्रेपरेशन मेथड पे क्वेश्चन आएंगे। बी केयरफुल। कमिंग टू द नेक्स्ट, molecule whose mirror image is non-superimposable over them are called as chiral। मॉलिक्यूल का अगर हम मिरर इमेज देखें, दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, तो उसको कायरल बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल? जैसे कि ये आपका एक हैंड है, लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड है। राइट हैंड को उठाओगे तो उसके ऊपर रखोगे, सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहे। लेफ्ट हैंड का ग्लव राइट हैंड के अंदर फिट नहीं होता। लेफ्ट शू राइट शू के अंदर सुपर इम्पोज नहीं करता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो सुपर इम्पोज ना करें उनको क्या बोला जाता है? कायरल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर? कायरल वही होगा जिसमें डिससिमेट्री होगी, जिसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। ऑप्शंस जो दिए हम उनको ड्रॉ करेंगे, हम उनके अंदर कायरल कार्बन चेक करेंगे, जो भी कायरल कार्बन कंटेन करेगा वो कायरल है। ठीक है, कायरल कार्बन क्या होता है? द कार्बन विच इज अटैच टू ऑल द 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो ए ऑप्शन हमारे पास 2 ब्रोमोब्यूटेन, 4 कार्बन, सेकंड पे बी आर, एंड ये जो सेकंड वाला कार्बन है बेटा, ये आपके पास कायरल कार्बन है, दिस इज कायरल। फिर है 1 ब्रोमोब्यूटेन। बी ऑप्शन में आप क्या ड्रॉ कर रहे हो? 1 ब्रोमोब्यूटेन, 4 कार्बन इन द स्ट्रेट चेन, बट फर्स्ट वाले पे बी आर लगाना है। वी हैव 1 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, तो यहां कोई भी कार्बन कायरल नहीं था। ए ऑप्शन में कायरल था, वहां मैंने स्टार लगा दिया। सी ऑप्शन है 2 ब्रोमोप्रोपेन, दिस वॉज बी। सी के अंदर 2 ब्रोमोप्रोपेन इज गिवन टू अस। टोटल 3 कार्बन, सेंटर पे बी आर लगाएंगे, फिर देखेंगे कायरल बनता है या नहीं बनता है। वो कार्बन कायरल नहीं है। एज अ रिजल्ट ये आपका आंसर नहीं बनेगा। कायरल कार्बन तो ए में आया था, ए ऑप्शन में स्टार डाला था। डी ऑप्शन देखो, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू ऑल, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू ऑल। तो आप फिर से 3 कार्बन एंड एक सेकंड वाला जो कार्बन है उस पे बी आर, उसी पे ओ एच, नो कायरल कार्बन। इसमें कायरल कार्बन क्यों नहीं है? क्योंकि मिथाइल है दोनों तरफ, ऑल 4 ग्रुप्स डिफरेंट चाहिए। तो आंसर बना ए ऑप्शन। ए मॉलिक्यूल जो होगा वो कायरल है, ए इज कायरल। क्लियर? लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन नाउ। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन देखो। रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br, इस मॉलिक्यूल का नाम है बेंजाइल ब्रोमाइड। रिएक्शन ऑफ बेंजाइल ब्रोमाइड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड विल फॉलो SN1 or SN2 or any of the above depending upon the temperature of the reaction। बेंजाइल ब्रोमाइड स्ट्रक्चर ये होता है, 6 कार्बन इन द रिंग, 7th कार्बन आउटसाइड एंड 1 Br, दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल ब्रोमाइड। जब आप इसको NaOH के साथ एक्वस मीडियम में रिएक्ट कराते हो, ये आयोनाइज हो जाता है। ये आयोनाइज होगा तो ये कार्बोकेटायन बनता है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल कार्बोकेटायन, and bromide is separated out. So benzyl carbocation is produced which is stable due to resonance। resonance stabilized carbocation है, मतलब कि
यही कार्बोकेटाइन बनेगा तो फिर SN1 रिएक्शन होगा। जब जब कार्बोकेटाइन बनता है SN1 से रिएक्शन हो जाता है। तो बेंजाइल ब्रोमाइड आयोनाइजेस इन एक्वस NaOH, बेंजाइल ब्रोमाइड का आयोनाइजेशन हो गया। बेंजाइल ब्रोमाइड आयोनाइजेस टू प्रोड्यूस बेंजाइल कार्बोकेटाइन, और फिर वो कार्बोकेटाइन स्टेबल भी है, उसमें रेजोनेंस होती है। एज अ रिजल्ट SN1 मैकेनिज्म, जब जब कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो मैकेनिज्म SN1 रहता है। करेक्ट। अब ये ब्रोमाइड निकल के कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैच हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिएजेंट। आपने अगर NaOH डाला है तो OH लगेगा, आपने NaCN डाला है तो CN लगेगा। सो क्वेश्चन ने NaOH दिया था, मतलब कि बेंजाइल अल्कोहल आपके रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, which of the following compound will give racemic mixture, which will give racemic mixture on nucleophilic substitution by OH ion। आपको 3 कंपाउंड दिए हैं, तीनों एल्काइल हैलाइड्स हैं, तो रेसिमिक मिक्सचर किसके अंदर बनता है? तो बेटा ए ऑप्शन, मतलब फर्स्ट कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन है, हम स्टार लगा देते। फर्स्ट में कायरल कार्बन, मतलब कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन। ठीक है, तो सेकंड को चेक करते हैं। फर्स्ट में तो स्टार आना है, सेकंड के अंदर कायरल नहीं है क्योंकि ये मिथाइल सेम है, नो कायरल कार्बन इन सेकंड स्ट्रक्चर। थर्ड को देखो, थर्ड में कायरल कार्बन तो है पर ब्रोमीन उसके ऊपर अटैच नहीं है। तो फर्स्ट वाले के केस में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉट ए, आई हैव टू राइट 1, कंपाउंड का नाम 1 है ना, तो फर्स्ट कंपाउंड ये था CH3CH एंड देन Br और फिर C2H5। इसमें से पहले कार्बोकेटाइन बनेगा। क्वेश्चन ने कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब होगी तो रेसिमिक मिक्सचर किस किस केस में आएगा, ये आपने पहले कार्बोकेटाइन बना देना है। CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बाकी लगा दिया इथाइल। अब बेटा जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेफ्ट साइड से भी आ सकता है और राइट से भी आ सकता है, और यहां हम ऐसा कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल कैन अप्रोच फ्रॉम अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन विद इक्वल चांस। एक को ऊपर बना देते हैं, एक बारी न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है, और दोनों तरफ से आने का चांस इक्वल है क्योंकि कार्बोकेटायन प्लेनर होता है। प्लेनर स्ट्रक्चर में दोनों तरफ से अटैक होगा। एज अ रिजल्ट यू विल गेट रेसिमिक मिक्सचर। न्यूक्लियोफाइल इस स्ट्रक्चर में ऐसे बनेगा, CH3C न्यूक्लियोफाइल ऊपर और H नीचे, या फिर ऐसा बना दो जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल नीचे लगा दो और H को ऊपर लगा दो। ये 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। सो दिस इज द रेसिमिक मिक्सचर। ये मैंने रेसिमिक मिक्सचर आपको दिखा दिया। दोनों चीजें जब बनती हैं तो उसको रेसिमिक मिक्सचर बोला जाता है। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। और बी में तो रेसिमिक नहीं आएगा, बी का तो कोई कार्बन कायरल ही नहीं था। सेकंड कंपाउंड में कोई भी कार्बन कायरल नहीं है। लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर थर्ड। थर्ड में CH3 लगा के यू हैव CH3 देन CH2Br एंड C2H5। दोबारा देख लो, ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर था, ये मैंने यहां ड्रॉ कर दिया। नंबर इसका 3। अब ब्रोमाइड के साथ न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन होना है। न्यूक्लियोफाइल तो कायरल कार्बन पे जा ही नहीं रहा, ये कार्बन कायरल है बट न्यूक्लियोफाइल तो उसके ऊपर नहीं जाएगा। न्यूक्लियोफाइल ने तो डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करना है। एज अ रिजल्ट यहां रेसिमिक मिक्सचर नहीं मिलेगा। गॉट इट? तो हमारे पास आंसर क्या बनता है? 14th क्वेश्चन के लिए आपका आंसर बनता है बेटा फर्स्ट कंपाउंड ओनली, मतलब ए ऑप्शन। This will result into racemic mixture. Clear? Coming to the next. The following questions from 15 to 20 may have 2 or more correct answers. So, अगले questions में आपके आंसर एक से ज्यादा आएंगे. Let's start with them. So, question number 15. Which of the statements are correct about reaction? देखो, आपको जो रिएक्शन दिया है उसमें पहली चीज ये देखिए कि ये रिएक्शन में SN1 हो रहा है या SN2। आपके पास जो एल्काइल हैलाइड गिवन है
दैट इज 1 डिग्री। उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव आके अटैक करता है एंड सम ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड जिसके अंदर 5 बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है। 5 बॉन्ड में से पार्शियल बॉन्ड्स हैं कुछ, एंड प्रोडक्ट के बाद क्लोराइड सेपरेट हो गया, ये प्रोडक्ट मिल गया। सो फर्स्ट ऑप्शन इज 1 and 5 बोथ आर न्यूक्लियोफाइल्स। ये बिल्कुल ठीक है बेटा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। याद ये रखना है कि OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो OH नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वरना क्लोराइड भी तो न्यूक्लियोफाइल है बट ये वीक है। क्या हम सबने इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड हैज ए वीक न्यूक्लियोफाइल एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो अगर कॉन्जुगेट एसिड लिखे जाएं, इफ आई राइट कॉन्जुगेट एसिड फॉर OH नेगेटिव तो ये बेटा बनेगा वाटर। इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखेंगे तो ये बनेगा HCl। कौन स्ट्रॉन्ग है, वाटर और HCl में से? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलवेज हैज वीक बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल, तो वीक न्यूक्लियोफाइल है क्लोराइड। और स्ट्रॉन्ग कौन है? OH नेगेटिव, इसलिए तो स्ट्रॉन्ग वाला अंदर आ गया ना। क्लोराइड तो मॉलिक्यूल का पार्ट था, क्लोराइड तो रिएक्टेंट के अंदर था, और स्ट्रॉन्ग है जो OH नेगेटिव वो आता है जब अटैक करता है तो वीक वाले को बाहर जाना पड़ता है, अदरवाइज है वो भी न्यूक्लियोफाइल। गॉट इट? सो 1 and 5 बोथ आर न्यूक्लियोफाइल। बहुत इंपॉर्टेंट NCERT एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। बी ऑप्शन में लिखा इन थर्ड मतलब ये, in this structure the carbon atom is sp3 hybridized। ये गलत है, ये 5 member transition state होती है, ये planar structure होता है, इसमें कार्बन बेटा sp2 hybridized होता है ना कि sp3, ठीक है। 1 and 5 both are electrophiles, ये गलत है, उनके तो खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उनको इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है विच इज इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 and 5 न्यूक्लियोफाइल्स हैं ना कि इलेक्ट्रोफाइल्स। अब आप देखो, याद ये रखिए कि जो 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है SN2 के अंदर, 5 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट इन SN2 रिएक्शन इज प्लेनर। प्लेनर मतलब hybridization is sp2, it is planar, therefore its hybridization is sp2, although it is pentavalent, 5 बॉन्ड हैं इसके पास, it is pentavalent, but वो 5 रेगुलर बॉन्ड्स नहीं है, 3 complete bonds are there, 3 full bonds with hydrogens, but बाकी 2 तो partial bonds हैं। ये तो ट्रांजिटरी स्टेट है, ट्रांजिटरी स्टेट तो कुछ सेकंड्स के लिए बनती है, सेकंड से भी कम टाइम के लिए बनती है ये, बट इसी के थ्रू प्रोडक्ट आना है, ठीक है। सो बट ये जो पेंटावेलेंट बन रहा है ये स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, इट इज अ प्लेनर कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर 5 बॉन्ड बनते हैं, बट वो कोई परमानेंट ना वो रिएक्टेंट है ना वो प्रोडक्ट है, वो कोई परमानेंट मॉलिक्यूल नहीं है, ट्रांजिटरी स्टेट है। याद रखना है कि ये sp2 है। और मेन बात, ये सारे आंसर्स तभी समझ में आएंगे जब मैकेनिज्म देख के आपको पता चले कि ये SN2 है। क्यों SN2 है? क्योंकि 1 डिग्री था, बैक साइड से अटैक हो रहा है, OH नेगेटिव बैक साइड से अटैक करता है, उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट बनती है। वो ट्रांजिशन स्टेट में 5 बॉन्ड समझ के हम हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं कहते हैं, हमें लगता है कि 5 बॉन्ड्स हैं, बट वो 5 रेगुलर बॉन्ड्स नहीं है, सिर्फ 3 रेगुलर बॉन्ड हैं, 2 तो पार्शियल बॉन्ड है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एज अ रिजल्ट आपके क्वेश्चन का आंसर बनता है A and C बोथ आर करेक्ट। गॉट इट? Coming to the next question number 16. Which of the following statements are correct about the reaction? ये reaction दिया है फिर से 1 डिग्री के ऊपर, दिस इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, मतलब कि दोबारा से आपको SN2 का ही रिएक्शन दे दिया। अब क्वेश्चन ने बोला ऑप्शंस आर द गिवन रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, 2 and 4 हैव ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, ये 2 और ये 4, दिस इज 4th, दिस इज 2nd। 2 and 4 हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम है या ऑपोजिट है ये बताना है, और द रिएक्शन फॉलोज SN1। नहीं बेटा SN1 तो नहीं है, ये SN2 है, 1 डिग्री के ऊपर SN2 होता है, तो एक तो आंसर ये वाला करेक्ट है, मतलब ए ऑप्शन तो आएगा ही SN2। अब क्या आपको याद है SN2 का मेन फीचर होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन।
inversion of configuration takes place in SN2. SN2 में बैक साइड अटैक होता है, जहां से क्लोराइड निकलता है वहां OH नहीं लगता, OH बैक साइड पे लगता है. सो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज द मेन फीचर फॉर SN2. अब बताओ, बैक साइड अटैक तो हो ही रहा है, बट क्या हमारा रिएक्टेंट जिसका नंबर 2 है और हमारा प्रोडक्ट जिसका नंबर 4 है, क्या उनके कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? इट विल बी सेम इवन दो अटैक इज फ्रॉम बैक साइड. जहां से क्लोरीन निकल गया वहां पे OH नहीं लगा, OH तो बैक पे लगा है, स्टिल कॉन्फ़िगरेशन बेटा सेम है, क्योंकि कोई कायरल कार्बन नहीं था. रिएक्टेंट में कायरल कार्बन नहीं है, प्रोडक्ट में भी कायरल कार्बन नहीं है. जब कायरल कार्बन नहीं होता फिर कोई फर्क नहीं है आपने OH लेफ्ट पे लगाया या राइट पे लगाया. बी केयरफुल. तो SN2 का फीचर तो यही होता है कि इन्वर्जन होनी चाहिए, पर हमारा रिएक्टेंट भी तो कायरल होगा अगर तभी इन्वर्जन होगी, अदरवाइज अंदर ही अंदर इन्वर्जन अब भी हो रही है. इवन दो कार्बन इज नॉट कायरल, इसके अंदर इन्वर्जन हो रही है, बट आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि तीन तो हाइड्रोजन लगे. ये देखो, दीज आर दी 3 हाइड्रोजन अटैच्ड, कोई कायरल कार्बन नहीं है. एज अ रिजल्ट आपका रिएक्टेंट और आपका प्रोडक्ट दोनों की सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी, इवन दो इट इज SN2 कॉन्फ़िगरेशन सेम है, क्योंकि इन्वर्जन तो अंदर ही अंदर होगी पर दिखेगी नहीं क्योंकि कार्बन कायरल नहीं था. So it was again an important question. Coming to the next one. Now question number 17. Which of the statements are correct about the reaction intermediate? आपको reaction intermediate के बारे में बताना है. ये reaction का intermediate दिखाया हुआ है. दिखते हैं reaction दोबारा से. फिर से ये SN2 है क्योंकि ये 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री के ऊपर OH आता है, बैक साइड से अटैक करता है और प्रोडक्ट मिल रहा है. तो क्वेश्चन ने बोला ए ऑप्शन में, द इंटरमीडिएट 3 इज अनस्टेबल बिकॉज इन दिस कार्बन इज अटैच टू 5 एटम्स. तो ये तो ठीक बात है, 5 एटम से ये जुड़ा है और ये अनस्टेबल है क्योंकि ये 5 बॉन्ड तो कार्बन नहीं बना सकता है, तो 5 में से कुछ तो टेम्परेरी बॉन्ड होते हैं. सेकेंड बी ऑप्शन में लिखा है इंटरमीडिएट 3 इज अनस्टेबल बिकॉज इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ये sp2 है, ये प्लेनर है, बट इस वजह से अनस्टेबल तो नहीं है ना, sp2 स्ट्रक्चर तो स्टेबल होते हैं. सो ए करेक्ट था बेटा, बी रॉन्ग था. सी ऑप्शन देखिए, इंटरमीडिएट 3 इज स्टेबल बिकॉज कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. नहीं, सी गलत है. डी इंटरमीडिएट 3 is less stable than the reactant 2. ये इंपॉर्टेंट बात है. A and D both are correct. A and D दोनों आपके आंसर हैं. D को ध्यान से देखो, ये जो इंटरमीडिएट है बेटा रिएक्टेंट से ये कम स्टेबल है. रिएक्टेंट से हमेशा इंटरमीडिएट कम स्टेबल होता है. आपका रिएक्टेंट तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, इंटरमीडिएट में तो 5-5 बॉन्ड बन रहे हैं, वहां तो 5 बॉन्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं था रिएक्टेंट में. रिएक्टेंट तो प्रॉपर टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है. एज अ रिजल्ट आपका जो इंटरमीडिएट है वो ट्रांजिटरी स्टेट है, वो कम स्टेबल है. SN2 का हम ग्राफ अगर देखें, SN2, ये क्वेश्चन SN2 पे है, तो अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होता है. आप एक एक्सिस पे तो बना दो एनर्जी और एक एक्सिस पे बनाओ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन तो आप क्या देखोगे, ये सिचुएशन आती है. ये अगर रिएक्टेंट का एनर्जी है तो ये प्रोडक्ट का एनर्जी है. रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H नेगेटिव, एंड दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट तो हाई होती है एनर्जी में. ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट से कम स्टेबल है. मोर एनर्जी मींस लेस स्टेबल. अब वो स्टेबल नहीं है तभी तो जाके वो बन जाती है प्रोडक्ट, तभी तो उसके अंदर से हेलोजन निकल जाता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है. तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, रिएक्टेंट या ट्रांजिशन स्टेट? रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है. फिर रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट क्यों बन रही है? क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट मिलेगा. जब प्रोडक्ट मिलेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी. प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल. एज अ रिजल्ट हमारा आंसर बनता है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी. सो 2-3 क्वेश्चन SN2 पे जो आए अभी अभी 15, 16 एंड 17, ऑल ऑफ देम वर हैविंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग SN2.
कि ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है या नहीं, ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सारे फीचर्स हमने कवर किए इन 3 क्वेश्चंस के अंदर। ऑल 3 ऑफ देम वर रिलेटेड विद SN2 मैकेनिज्म। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following statements are correct about the mechanism of this reaction? अब बेटा एक रिएक्शन जो दे रखा है, इसको देखो SN1 है या SN2 है, फिर हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। ये जो गिवन स्ट्रक्चर है, इट इज 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, 2 डिग्री है। 2 डिग्री में कार्बोकेटाइन बनेगा अगर SN1 है, SN1 से चलेगा। देखते हैं ऑप्शंस को। अ कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, दैट इज करेक्ट। बी ऑप्शन में लिखा है OH नेगेटिव विल अटैच द सबस्ट्रेट 2 फ्रॉम वन साइड एंड क्लोराइड विल लीव इट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द अदर साइड। तो क्या ऐसा है? OH will attach from one side and chloride will leave from the other side? ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये SN2 नहीं है, इसमें कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। इसके स्ट्रक्चर का मैं आपको कार्बोकेटाइन बना के दिखाऊं। ये आपका रिएक्टेंट है CH3 and then ethyl is attached, chloride is attached and hydrogen is attached। ये गिवन है ना हमें। इसका बेटा कार्बोकेटाइन हम बनाते हैं, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। सो कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिल रही है, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ मिथाइल, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ इथाइल, सो स्टेबल कार्बोकेटायन। जब कार्बोकेटाइन स्टेबल है, फिर ये जो बी पॉइंट है ये तो गलत हो गया कि OH विल अटैच द सबस्ट्रेट फ्रॉम वन साइड एंड क्लोराइड विल लीव फ्रॉम द अदर। ऐसा नहीं होता, प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाता है पहले कार्बोकेटाइन। उसके बाद लिखा है सी ऑप्शन में, देखो an unstable intermediate will be formed in which OH and chloride will be attached by weak bonds। नहीं, वीकर बॉन्ड से जब OH और क्लोराइड जुड़े होते हैं वो SN2 मैकेनिज्म होता है, वो 1 डिग्री में होता है। यहां क्राउडिंग है बेटा, यहां बल्कि मिथाइल और बल्कि इथाइल ग्रुप लगा है। इतने क्राउडेड मॉलिक्यूल में SN2 नहीं होता। SN2 अगर हो जाता फिर तो सी ऑप्शन करेक्ट होती। ठीक है, SN2 में होता है ना ऐसा कि OH का भी बॉन्ड पार्शली अभी बन रहा है और क्लोराइड का पार्शली टूट रहा है, तो सी भी गलत है। रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू SN1, दैट इज करेक्ट। इन इतने क्राउडेड मॉलिक्यूल में सबसे पहले कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटता है, क्लोराइड सबसे पहले अलग हो जाता है। ये क्लोराइड को अलग किया और फिर आपने मेंशन करना है कि ये जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप है, उसके बाद आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखते हैं रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्या दिया। OH नेगेटिव दिया, साइनाइड भी हो सकता था, कोई OCH3 नेगेटिव भी हो सकता था। एनीवे हमें साइनाइड दिया है। तो अब ये साइनाइड सेकेंड स्टेप में जब अटैक करेगा तो इसके अटैक करने का अब इक्वल चांस है फ्रॉम अबव द प्लेन एज वेल एज बिलो द प्लेन। एज अ रिजल्ट आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा एंड आंसर बनते हैं A एंड D ऑप्शन। कार्बोकेटाइन भी बनेगा और SN1 से रिएक्शन हो रहा है। SN2 में तो कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following statements are correct about the kinetics of this reaction? इस रिएक्शन में पहले रिकॉग्नाइज करते हैं अपना रिएक्टेंट। हमारा रिएक्टेंट फिर से 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो ऑप्शंस हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 ओनली। रेट ऑफ रिएक्शन क्या इस न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा या 2 मतलब कि एल्काइल हैलाइड पे करेगा या दोनों पे करेगा, ये बताना है। फर्स्ट में लिखा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 ओनली। दूसरे में लिखा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ। तो बेटा डिसाइड पहले ये करिए मैकेनिज्म SN1 है या SN2। इट इज SN1। अभी अभी हमने बोला इतने क्राउडेड मॉलिक्यूल में SN2 नहीं हो सकता। रेट ऑफ रिएक्शन इन SN1 डिपेंड्स ओनली ऑन Rx। SN1 में स्लो स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल नहीं आता। SN1 का ये मैकेनिज्म होता है, Rx will break first of all and then in the second step nucleophile will approach and you will get the product। पर second step तो fast step है, इंपॉर्टेंस तो स्लो स्टेप की होती है। स्लो स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। तो आपके
रिएक्शन के रिएक्टेंट दो हैं, एक RX है एक OH नेगेटिव है, बट रेट दोनों पे डिपेंड नहीं करता। SN1 में रेट सिर्फ एक के ऊपर ही डिपेंड करता है, और किसके ऊपर? एल्काइल हैलाइड के ऊपर। सो ये केमिकल काइनेटिक्स की इक्वेशन है। रिएक्शन का रेट लिखना हमें ठीक से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 ओनली, दैट इज करेक्ट। एंड मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन इज 1। दो रिएक्टेंट हैं पर मॉलिकुलैरिटी देखो पहले क्या होता है। मॉलिकुलैरिटी का मीनिंग क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ एटम्स और आयॉन्स और मॉलिक्यूल्स which are colliding together, to produce the product. ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं जब ये प्रोडक्ट आता है। तो अगर मैकेनिज्म नहीं पता समझ लो तो आप बोलोगे दो कोलाइड कर रहे हैं, एक RX और एक OH। ऐसा नहीं होता है। SN1 में सारे डिसीजन स्लो स्टेप ने लेने हैं। स्लो स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, और स्लो स्टेप के अंदर तो न्यूक्लियोफाइल आ ही नहीं रहा, स्लो स्टेप में तो OH आ ही नहीं रहा है। एज अ रिजल्ट रिएक्शन का रेट डिसाइड करने वाला एक ही फैक्टर है, वो कौन है? वो RX है, वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो एक ही मॉलिक्यूल है, मॉलिकुलैरिटी एक ही आएगी। स्लो स्टेप के थ्रू ही बेटा मॉलिकुलैरिटी देखी जाती है। आपको बताया था जब रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं होता, 2 स्टेप्स में या 3 स्टेप्स में होता है तो उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। आपके सामने रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रहा है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम एक और एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट भी कर सकते हैं। लेट्स से कि एक साइकिल फैक्ट्री है। साइकिल फैक्ट्री में डेली साइकिल बनाए जाते हैं, और एक साइकिल बनाने के समझ लो 4 पार्ट्स हैं, A, B, C एंड D। कोई ए पार्ट साइकिल का जो पैडल है, साइकिल के व्हील्स हैं, साइकिल का हैंडल है, सीट है। तो लेट्स से 4 पार्ट्स इकट्ठे हो जाएं तो साइकिल तभी बनेगा। तो एक फैक्ट्री में एक दिन में 100 ऑफ A बनते हैं, 200 ऑफ B बनते हैं, 1000 ऑफ C बनते हैं एंड 1 ऑफ D बनता है एक दिन में। तो ओवरऑल दिन की प्रोडक्शन क्या है? फैक्ट्री एक दिन में कितने साइकिल बना सकती है? ओनली 1 साइकिल। क्यों? क्योंकि ये जो स्लोएस्ट स्टेप था ना, इसकी वजह से बाकी सारे स्टेप्स का कोई फायदा नहीं है। जब तक आपके पास दूसरा D नहीं आता तब तक आपके पास दूसरा साइकिल नहीं बनेगा। आपके पास एक D है तो एक ही साइकिल बनेगा। ओवरऑल प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो D को बढ़ाना पड़ेगा। A, B, C को क्यों बढ़ाना है? वो तो ऑलरेडी एक्सेस में पड़े हैं, ठीक है। तो नेट प्रोडक्शन रेट हमेशा स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। अब हमारा SN1 रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसको प्रोसीड होने में 2 स्टेप्स लगते हैं। 2 में से पहला स्टेप मुश्किल स्टेप है, वो स्लोएस्ट स्टेप है। उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा है, उसमें बस कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूट रहा है। बात यह है कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूटने के बाद कार्बोकैटायन अगर बन गया तो ही प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में फिर स्लो स्टेप ने डिसीजन लेना है, तो स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल RX, OH तो नहीं आया। एज अ रिजल्ट इसका मॉलिकुलैरिटी 1 है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर एक तो था ऑप्शन A और दूसरा ऑप्शन C। A एंड C बोथ आर करेक्ट। गॉट इट? लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 20। Haloalkanes contain halogen atoms attached to sp3 hybridized carbon of alkyl group. Identify the haloalkane from the following. आपको वो haloalkane ढूंढना है जहां पे sp3 कार्बन हो। अगर हेलोएल्केन की जगह हेलोएरीन हो गया फिर तो कार्बन डबल बॉन्ड वाला होता है, फिर तो sp2 होगा। सिंगली बॉन्डेड कार्बन sp3 होता है। सो ए ऑप्शन का बेटा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। 2 ब्रोमोपेंटेन, दिस इज 2 ब्रोमो पेंटेन। सो कैन आई से ऑल सिंगल बॉन्ड्स? ऑल सिंगल बॉन्ड्स का मतलब कार्बन sp3 है। जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना था, तो इट इज sp3। कम टू द नेक्स्ट, विनाइल क्लोराइड। ये बेटा ए था। बी में हमें लिखना है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड के लिए आप कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाओगे, CH2
double bond CH and Br, this is sp2। जिस भी कार्बन को डबल बॉन्ड लग गया वो कार्बन फिर sp2 हो जाता है। सी ऑप्शन है 2-chloroacetophenone। सी ऑप्शन इज 2-chloro and then acetophenone। एसिटोफिनोन का ये स्ट्रक्चर होता है, दिस इज एसिटोफिनोन, राइट, कीटोन है ये, और 2-क्लोरो दिया है, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन, 2-क्लोरो एसिटोफिनोन। ये भी कार्बन sp2 हो गया क्योंकि बेंजीन रिंग पे लगा है ना हैलोजन, हैलोजन इज अटैच टू बेंजीन रिंग, तो ये हो गया sp2। डी ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, ट्राइक्लोरोमीथेन। डी ऑप्शन इज ट्राइक्लोरोमीथेन। ये बेटा क्लोरोफॉर्म CHCl3 is trichloromethane and its common name is chloroform, and 3 chlorines 1 hydrogen, sp3 क्योंकि सिंगली बॉन्डेड कार्बन है, सो sp3 कहाँ पे आ रहा है, A and D, तो ये हेलो एल्केन्स हैं जिनके पास sp3 कार्बन है, राइट। तो हमने पूरा डिस्कशन किया है हेलो एल्केन्स के ऊपर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन थे ये, बट ये हेलो एल्केन्स के थे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ हेलो एरीन्स करेंगे। एंड दैट इज ऑल फॉर द लेक्चर। कीप प्रैक्टिसिंग एंड मेक श्योर you subscribe to the channel. It will help to give more videos and you can revise the topic thoroughly. And thank you and bye bye.